So introduce yourself. Good evening, ma'am. Myself, Kishore Kunal Kesari. I completed my BTech from Gaya Engineering College, Gaya, and MTech from NIT Durgapur. In my MTech, I worked in two projects. First is disease detection using a smartphone, and another is disaster detection using smartphone. After my MTech, I worked more than 2 years as a assistant professor in reputed engineering colleges. I was taken there computer organization and architecture uh, and computer network, these two subjects, and I have also some. I'm certified AWS educator. I was selected for NIT Allahabad temporary faculty position, and other autonomous body also, for example, in CU, LPU. Thank you, ma'am. Okay. And Okay. So Kishore, ma'am, yes, sister, yes. I worked more than 5 months as a district IT manager in Lakhisarai district. Currently, I'm working as a computer science school teacher, qualified by BPSC. Thank you, ma'am. Okay. So yes, you're doing a government job at present in school. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Kishore, when did you complete your BTech In 2016, ma'am. and your MTech? No, MTech 2021. Uh, so what did you do in between the gap? Ma'am, I was suffering from high brain intensity problem. That was uh, problem in my brain, ma'am. Okay. So you started your MTech in which year? 2019. And you completed in 2021. Yes, So, ma'am. 2 years you worked as assistant professor. Yes, ma'am. Okay, and then you started as BPSC school teacher. No, ma'am. Then I worked more than 5 months as a district IT manager in Lakhisarai district, that is a district in Bihar. And after that, I just joined, ma'am, as a Okay, you school just teacher. joined. Okay, as a Yes, ma'am. school teacher. So why did you like there's a lot of shifting of jobs actually, job roles basically. Okay. Ma'am, First you were assistant professor, then you shifted to some other, then you again shifted to teaching but in a school. yes, ma'am. Okay. So what was the reason for that? Ma'am, my first reason is uh, because I want to live in my near my house, and Lakhisarai district is near my house. But I was not e- able to use my knowledge because there is only I we have only worked of uh, using software, transfer funds, and some that work are less technical work, and I'm not able to use my knowledge or whatever I did in my MTech or BTech. So I left that job, and I like teaching. Second thing, I like teaching, so I shift in again in school teacher. Okay. So why did you not go in for PhD? Ma'am, I want to get first some uh, experience, then I will also uh, go for PhD. And I was selected for PhD also in NIT Silchar. Okay. So you did not join there. Yes, ma'am. I did not join because I want to go for a part-time PhD. Hmm. Uh, see, in computer science, the technology is continuously changing. ठीक है? Yes, ma'am. तो आप अपने आप को कैसे अपडेट रखेंगे उस कंटिन्यूसली चेंजिंग टेक्नोलॉजी से? हाउ विल यू अपडेट योरसेल्फ? Ma'am,
working on current technology and trying to get knowledge as in when I was working as a assistant professor in Axis College. There are a lots of center of excellency for lots of companies center of excellency. I choose Amazon Web Service because it's the highest using cloud system all over the world, and also it has a lots of new features, and that new features I get that knowledge, I think. तो AWS से जो भी मेरे को AWS के थ्रू बहुत सारा नॉलेज मेरे को गेन हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी पर AWS काम कर रहा। उसी तरह जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं ग्रैप्स कर पाऊँ या नया सीख पाऊँ। सही नहीं है। ओके। ओके। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी आप स्टूडेंट्स में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैम, मैंने ये टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को मैंने क्लास लिया था, इसमें लैब्स है और मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, AWS आर्किटेक्ट, AWS fundamental. These are the courses under AWS cloud, and these courses मैंने इन कोर्सों को चलाया था, और जिसमें से 600 से ज़्यादा बच्चों को मैंने एजुकेट भी किया था AWS में। और उसमें से कुछ बच्चे का सिलेक्शन भी अच्छे पैकेजेस पर हुआ है AWS में, वो भी। तो ये बेनिफिट भी हो रहा है। और इसके थ्रू हम बिहार में, अगर ये प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारी कंपनियां नहीं आ रही है, तो मेरे को ये देखना है कि वो कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मैं उनको वो नॉलेज दूंगा। तो जैसे AWS का क्या रिक्वायरमेंट है, AWS के कोर्स से मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूंगा। वैसे ही ब्लू पोलो अल्टो कंपनी है या ब्लू प्रिज्म है, इन सब का रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हम लोग देखते हुए हम लोग उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बना के। ओके। सो किशोर, व्हाट इज योर टीचिंग फिलोसफी? आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? मैम, आई यूज फर्स्ट story method, and then I will go for actual diagram, whatever the uh, diagram uses. Then I will give notes to them written. ओके। अच्छा चलो, किशोर, लेट मी जस्ट डिस्कस विद यू। एक तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छे से देना है, ठीक है? कि आपने पहले बीटेक किया, फिर एमटेक किया, कहाँ से किया, उस बीटेक के टाइम में कहीं कुछ पार्टिसिपेशन की थी आपने? कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हो, कहीं स्पोर्ट्स में, कल्चरल में कहीं पार्टिसिपेट किया हो, कहीं डिबेट्स में, कहीं टेक फेस्ट में या कुछ? नहीं मैम, मैंने जब मैं 8 में था तब मैंने किया था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचा था, रनर रहा था। इसमें? ये 1857 का जो एक क्विज हुआ था, तो उसमें मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो है सेकंड पोजीशन पे रहा था। क्विज कहाँ हुआ था? कॉलेज में हुआ था कि स्कूल में हुआ था? स्कूल में था मैम, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज। ठीक है, कॉलेज तो में आप ये, कुछ खास ठीक है, वैसा। कोई बात नहीं। आप ये बोलोगे बीटेक आपने कहाँ से किया, किस चीज में किया, फिर आपका, क्योंकि आपने एमटेक भी किया, इसलिए बीटेक प्रोजेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की। देन यू कैन से दैट यू डिड, आफ्टर दैट यू डिड योर एमटेक इन कौन से फील्ड में किया, और उस टाइम में आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, ठीक है, वो आपको बताना है। फिर आपने बताया है कि आपने यहाँ यहाँ काम किया, उसमें आपने ये चीज पढ़ाई, वो भी आपने बताया है, ठीक है? तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको थोड़ा ऑर्डर में जैसे जैसे हुआ वैसे बताना है। कि आपने फिर एमटेक के बाद आपने पढ़ाया है ना असिस्टेंट प्रोफेसर? यस मैम। फिर आप वो कुछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 6 मंथ्स के लिए? यस मैम, हाँ। डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर। हाँ, आईटी मैनेजर रहे हैं। दैट वाज आल्सो गवर्नमेंट जॉब? यस मैम। सो व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब? कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ। कॉन्ट्रेक्चुअल, दैट वाज अच्छा, दैट वाज कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट जॉब। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, यस कॉन्ट्रैक्चुअल मैम। गवर्नमेंट जॉब। ओके, डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर आप रहे। उसमें आपका रोल क्या था?
मैम उसमें मेरा रोल बस डीएम सर का जो भी अंडर में काम होता है, जैसे फंड ट्रांसफर डीएम सर के अंडर होता है, तो पहले वो टेक्निकली सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो वो मेरे को ट्रांसफर करना था। लेकिन मेनली जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास सीबीएस का आया था कास्ट बेस्ड सर्वे, तो मेरा उसी का मेरा ही काम ही था पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में कास्ट बेस्ड सर्वे देखना। तो कास्ट बेस्ड सर्वे, फिर डोमिसाइल जो है बिहार में, तो डोमिसाइल का जो भी आरटीपीएस है वो मेरे अंडर था। और जन लोक शिकायत ये भी आईटी मैनेजर के अंदर होता है। अच्छा, तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि ये तीन चीजें आप हैंडल कर रहे थे वहां पे, ठीक है, यस मैम। एज अ डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर। एंड देन अगेन यू जॉइंड स्कूल थ्रू बीपीएससी, यू जॉइंड स्कूल। यस बट मैम। अगर आप ये बताओगे तो आपको एनओसी वगैरह नहीं चाहिए होगा? मैम अभी तुरंत ज्वाइन किए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, और बताया है कि हम एनओसी दे देंगे तुरंत। अच्छा, बोला है उन्होंने एनओसी दे देंगे? यस मैम। हाँ, तब ठीक है। अगर उन्होंने खुद बोला है कि एनओसी दे देंगे, फिर आप मेंशन कर सकते हो कि एट प्रेजेंट आपने ये स्कूल में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो वो बोलेंगे फिर स्कूल क्यों छोड़कर आ रहे हो, आप लोग गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो, तो आप कह देना कि मेरा क्वालिफिकेशन एमटेक है एंड मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। यस मैम। ओके। मैम मैंने जो कॉलेजेस में काम किया है अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे 8 मंथ मैंने आईएमएस में काम किया था, उसके बाद एक्सिस कॉलेज में। मेनली एक्सिस कॉलेज में मेरा कैरियर ग्रोथ हुआ, क्योंकि वहाँ ही मैंने को एजुकेटर बना एडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पर मैंने खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। तो क्या मैं दोनों को अलग अलग करके बताऊं, और हाँ फिर हाँ, दोनों को अलग अलग करके बताओ। अलग बताएं? ठीक। और लेकिन फिर मैम, उसमें एक ही, पहला क्यों छोड़ा और दूसरा क्यों ज्वाइन किया? हाँ मेरा वहाँ कैरियर ग्रोथ नहीं था, प्रॉब्लम ये था। और यहाँ मेरे को कैरियर ग्रोथ मिला, इसलिए मैं यहाँ स्टेबल भी रहा बहुत दिन तक। और मैम मेरा एनआईटी इलाहाबाद में टेम्पोररी फैकल्टी पोजीशन पे भी हुआ था, तो ये भी बताना। और सीयू एलपीयू देश ये तो आपने ऑटोनोमस इलाहाबाद बॉडी क्यों में। नहीं ज्वाइन किया? मैम एक्चुअली मैं तुरंत छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि आईएमएस को ज्वाइन किया था और उसके 2 महीने के बाद ही मेरा टेम्पोररी पोजीशन पे हो गया था। तो तुरंत छोड़ना ये मेरे को बेहतर नहीं लगा आईएमएस को। ओके, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे मैम हाँ, इनको यही रीजन बोल सकते हो आप। कि 2 महीने का छोड़ना नहीं नहीं, चाहता था। मतलब ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हुआ वहां हुआ, मतलब ठीक है, एक दो तीन जगह इकट्ठे बता दो कि आई वॉज सिलेक्टेड फॉर, कि मेरा एनआईटी इलाहाबाद या और एक दो जगह पर, जो जो जगह पे हुआ वहां पर भी यस मैम। सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैं एक तो छोड़ना नहीं चाहता था, दूसरे वो और ज्यादा दूर जगहों पे भी तो थे, है ना। यस मैम। ये आपने पहले ही बताया ना कि आप बिहार में ही रहना चाहते हैं, यस मैम। है ना। यस तो यू मैम। कैन से आई वांटेड टू से स्टे इन बिहार ओनली, ठीक है। यस मैम। ये तो आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। मैम बोल रहे हैं तो फास्ट बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं, कुछ वैसा प्रॉब्लम? अब बीच बीच में आप अटक रहे हो, वो नहीं अटको, आप सोच समझ के बोलो, जो भी आपने बोलना है वो आप सोच समझ के बोलो, कोई बात नहीं है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, आप उसके बाद 2 मिनट रुक जाओ, मतलब यस मैम। 2 मिनट नहीं रुकना है, 5-7 सेकंड सोच के बोल सकते हो, चार यस पांच मैम। सेकंड थोड़ा जैसे सोचा कि अब मैं क्या बोलूंगा और एकदम से बोल दिया था, ठीक है। यस मैम। देखो और कोई चीजें प्रॉब्लम है? सही हैं, हाँ। और दूसरा, आपने ना बाकी जगह बहुत कहानियां सुना दी हैं, वो नहीं सुनानी है आपको। अब मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, उसमें नोट्स वोट्स, कौन आजकल नोट्स वोट्स का जमाना नहीं रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, यस मैम। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। न्यू एजुकेशन कौन, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो नोट्स वोट्स सब हट गया है ना, रोट लर्निंग तो रही नहीं है उसके अंदर, यस ठीक है। मैम। तो आप नए तरीके बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर से पूछेंगे, बच्चों को बोलेंगे पीपीटी बना के लाएं, या खुद पीपीटी से पढ़ाएंगे या कुछ ऐसा, है ना। नोट्स वोट्स नहीं देते आजकल, ठीक है, यस। लिखवाते नहीं है। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है ना सारा, ठीक है। यस। तो सब कुछ उसी से होता है। तो उस तरह से आपको कुछ, आजकल तो एनिमेशंस, थ्री थ्री डायमेंशंस और एनिमेशन 3D मॉडल्स और इस तरह की चीजें होती हैं जिससे पढ़ाते हैं लोग, है ना। और फिर बच्चों, आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखेंगे, आपने पूरे टाइम में सिर्फ AWS ही बोला और कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। हर चीज के लिए आपने AWS ही बोला। आप अपने आप को कैसे अपडेट रखेंगे, आप जर्नल्स पढ़ेंगे, आप
टेक्निकल पेपर्स पढ़ेंगे, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है इंटरनेट के, वो आप वहाँ थोड़ा ठीक है। AWS ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देखेंगे, दैट इज वन ऑफ द, वो सिर्फ उसके थ्रू नहीं होगा, ठीक है, आपको यस मैम। बाकी चीजें भी करनी है। ओके, यस मैम। यस मैम। तभी आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। और स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंप्लीमेंट करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, किस चीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, हर एक ये भी कंपनी आप, पे मैम। यस मैम, नहीं जैसे नहीं AWS का है। नहीं, AWS का तो है, बट बच्चों को कैसे पहुंचाएंगे, बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, आप उनके लिए सेमिनार्स करेंगे, आप उनके लिए क्या क्या चीजें करेंगे जिससे वो अपडेट रह जाएंगे। जो इंडस्ट्री होगी उसकी विजिट करा दो, ठीक है, जिस जहां पर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वहां पर ले जाओ, है यस ना, मैम। उनको प्रोजेक्ट्स कराओ जो लेटेस्ट चल रहा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कराओ प्रोजेक्ट्स में, है ना, ठीक है। तो इस यस मैम। तरह से आपको थोड़ा सा नया सोच के करना पड़ेगा चीजें, ठीक है, फाइन, यस मैम। थैंक यू ओके, ठीक है। मैम।